Okay, so good morning, everyone. Last time in integration 3 lecture, we had started with substitution, integration by substitution, right? And in our formula list, we have added integration of tan, cot, sec, and cosec. Right? Okay. Was there any homework, students, last time? Any homework? Okay. So we have to now start with the exercise, right? So 3.1 is completed. Today we will start with 3.2a. Okay. I hope all the students have come. Fine. And I hope you all would have revised the method of substitution also. Like, what do we substitute before we substituting, before assuming something as t, what should be there in our mind, right? So you all remember that, I assume it. So exercise 3.2a. So before we substitute anything, what do we keep it in our mind, Bacho? If I want to substitute something as t, what is that important thing that we should keep it in our mind before we substitute something as t? Yes? Or randomly, can we substitute anything as t? I had discussed this in the last class. No. Is the function linear? Linearity में क्या, linearity यहाँ पे क्या आ गया प्रिया? No. You think till I'll write the first question? So it means you all have not revised it properly. Okay. Whenever we substitute anything in integration, after writing that step that this equal to t, what is the next step? We differentiate. So the answer for my question is, before we substitute something as t, we must visualize that can we adjust the derivative of that term in our question, right? Because whatever you will substitute as t, you will be differentiating it. So the derivative of that term should be adjusted in our expression. It should be clubbed with dx and that should be replaced by dt. I hope I have explained you all this, right? For example, in this question, I can see that the log x ko if I put t, the derivative of log x is 1 upon x. Isn't it? तो 1 upon x है ना वहां पर डेरिवेटिव, तो 1 upon x और dx एडजस्ट हो जाएगा, right? So
I will put here, put log x equal to t. Next step, differentiating with respect to x. तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx, उस dx को इधर लेकर आ गए. सो नाउ डोंट यू थिंक कि इसके अंदर आपका, जस्ट अ मिनट, ये जो 1/x और dx है ये मिलकर dt हो जाएगा, और इस log x की जगह t लिखा है, राइट? तो ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह t, so it becomes simply t to the power n and everything else becomes dt. Now this is like x raised to n with respect to x, so t raised to n with respect to t. So the answer is very simple now. T raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Replace t by log x. So log x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. This is the answer of the integration. I hope everyone understood this. Okay. So like that you need to think before we substitute t कि उसका डेरिवेटिव वहां पर है या नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. I is equal to integration of sine inverse x raised to 3/2 whole upon root of 1 minus x square. Can anyone tell me what should I substitute and why? Now the questions are very simple. You can easily make out that what to substitute. Here you can see sine inverse x is t, because the derivative of sine inverse x is 1 upon root 1 minus x square, which is there. So I will put here sine inverse x as t, differentiating with respect to x. So the derivative of sine inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. dt by dx का dx इधर आएगा, is dt. So this dx upon root 1 minus x square will become dt. So therefore I will become what? This is t, so t raised to 3/2 into dt. इसका इंटीग्रेशन t raised to 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 plus 1, that is 5/2 upon 5/2 plus c. 5/2 ऊपर जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और t को साइन इनवर्स x लिख देंगे. सो 2/5 साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा. Everyone understood? Any problem in understanding? Very simple question. थोड़ा भी हम लोग फास्ट करेंगे so that maximum sums हम solve कर पाए. Third one, I equal to integration of 1 plus x upon x into sine of x plus log x. आपको और एक आइडिया देता हूं बच्चों.
कभी कभी क्या होगा ना, आपको समझेगा नहीं। अभी लास्ट दो क्वेश्चन में तो इजीली दिख रहा था कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, but sometimes it may happen that it is not getting clicked that what to substitute. So there is a logic. Normally we substitute something which is more complex, or because of which the function is getting more complex. So can you tell me, from this expression, from this function, which term is there which looks like more complex? And if I that substitute as t, it may be reduced to a simple function. So you can easily make out that sine ka angle is x plus log x, right? So if I put x plus log x as t, it becomes sine t. So it becomes simple term, right? But second thing in our mind is what? Whenever we substitute something as t, उसका डेरिवेटिव हमको देखना होता है. तो अगर मैं x प्लस लॉग x का जरा डेरिवेटिव विजुअलाइज करूं, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस लॉग x का 1 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x. अरे वाओ, आई हैव x प्लस 1 अपॉन x ऑलरेडी हियर. हेलो, आर यू विथ मी? कम ऑन. सो हियर I will put x plus log x equal to t. Differentiating with respect to x, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1 अपॉन x, dx equal to dt. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get x plus 1 upon x dx is dt. So we already have x plus 1 upon x into dx. Yes or no? X plus 1 upon x into dx. This is replaced by t, sorry, dt, और x plus log x की जगह t हो जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा और बाकी सब dt हो गए, राइट? अब 1 अपॉन साइन टी का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम उसको कोसेक लिखेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी, एंड देन कोसेक का इंटीग्रेशन हमने अभी इंट्रोड्यूस किया था, राइट? व्हाट वाज दैट? log of cosec x minus cos x. So it is log of mod of cosec t minus cos t plus c cot t. Cosec minus cot, not cos. अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो t है उसको बस रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा log of mod of cosec x plus log x minus cot x plus log x plus c. So this is your final answer. Yes, everyone understood this? Okay. Now moving ahead to the next question. Question number 4. हाँ, कहीं भी कुछ भी स्टेप नहीं समझे तो स्टूडेंट्स पूछ लो, ठीक है? ऐसे आई एम गिविंग यू ऑल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. ऐसा आपको डाउट नहीं रहेगा, बट इन केस आपका नेट फ्लक्चुएट हुआ और कुछ सुनाई नहीं दिया, चलो, just tell me what will you substitute here? Think and tell me in 10 seconds. What should I substitute? देखो,
अगर मैं यहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो रूट के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो अगर मैंने tan क्यूब को पूरे को t पुट किया तो थिंक tan क्यूब का डेरिवेटिव पहले 3 tan स्क्वायर होगा, बाद में tan का डेरिवेटिव होगा, राइट। बट 3 tan स्क्वायर किधर एडजस्ट करूंगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं टर्म, राइट। 3 tan स्क्वायर को कैसे एडजस्ट करूंगा, वो है ही नहीं। तो मैं tan क्यूब को नहीं पुट करूंगा, मैं क्या करूंगा, वो क्यूब को हटा दो, साइड में रखो। tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमको मालूम है tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा sec x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। हेलो, और उसका डेरिवेटिव 2x होगा। तो आपको नहीं लग रहा है tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x स्क्वायर दिया हुआ है, और 2x का x है, 2 तो कांस्टेंट है, दैट कैन बी एडजस्टेड। हेलो, समझ में आया? सबको समझ में आया? मैंने tan क्यूब क्यों नहीं लिया, इंपॉर्टेंट। मैं सिंपली tan ऑफ एक्स स्क्वायर को टी क्यूब पुट कर रहा हूं, क्योंकि रेस टू, अगर tan रेस टू 3 होता तो पहले मुझे रेस टू 3 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, वो होता 3 tan स्क्वायर, वो किधर है ही नहीं एक्सप्रेशन में। एंड एनीवेज अगर ये t हो गया तो वो तो t क्यूब हो जाएगा ना, तो डजेंट मैटर, राइट। तो ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले tan का डेरिवेटिव किया तो sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x dx इक्वल टू dt। अब हमारे एक्सप्रेशन में 2 नहीं है, तो 2 को इस साइड भेज दो, तो इसको लिखा x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब पूरे एक्सप्रेशन में इसको रिप्लेस करेंगे तो देखो, ये x स्क्वायर इस वाला टर्म और dx will be replaced by dt by 2, so therefore I will be equal to, ध्यान से देखो, वो तो पूरा dt हो गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे रूट के अंदर ये t हुआ तो ये t क्यूब हो जाएगा ना बच्चों। t क्यूब के पावर में रूट है, रूट मतलब 1/2, तो एक्चुअली वो t रेज टू 3/2 हो जाएगा, isn't it? Then t raised to 3/2 will go up, t raised to -3/2। अब ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, t raised to n का, तो वो होगा t raised to n plus 1 -3/2 plus 1 -3/2 plus 1 plus c। Solving this further, you will get t raised to 2 minus 3 -1/2 अपॉन -1/2। नीचे वाला -1/2 ऊपर चला गया, और टी रेस टू -हाफ नीचे आ गया, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/-1 मतलब -2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और टी रेस टू -हाफ नीचे आके टी रेस टू हाफ हो गया, टी रेस टू हाफ मतलब रूट टी। एंड नाउ टी के जगह हम रिप्लेस करेंगे जो हमारा एक्सप्रेशन था, दैट इज tan ऑफ एक्स स्क्वायर। एवरीवेयर डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी। अच्छा सॉरी, dt/2 था ना, दैट dt/2 विल रिमेन dt/2। तो वो dt/2 का जो 1/2 था वो हमने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, ठीक है। सो जस्ट कीप इट आउटसाइड, 1/2 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो वी विल बी लेफ्ट विथ -1, करेक्ट। वो गलती से मैंने dt लिख दिया था, समझा वो 2 कैसे एडजस्ट हो गया स्टूडेंट्स? So this is your final
आंसर। Okay. Now moving ahead. Next question. Question number 5. I equal to integration of e raised to 3x upon e raised to 3x plus 1 dx. Tell me, what will you substitute here? You can substitute e raised to 3x as t, correct? क्योंकि e raised to 3x का डेरिवेटिव e raised to 3x ही होगा, into 3x का डेरिवेटिव होगा, बट वो तो कांस्टेंट होगा, डजंट मैटर, राइट? अच्छा, e raised to 3x को t पुट किया या e raised to 3x plus 1 पूरे को टेस्ट t पुट किया, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो, बिकॉज एनीवेज प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है ना, डेरिवेटिव में उसका इंपैक्ट नहीं आने वाला है, राइट? तो पूरा t हो जाएगा तो अच्छा है ना। तो हमने क्या किया, e raised to 3x plus 1 पूरे टर्म को t पुट किया, and now if you differentiate with respect to x, e raised to 3x का डेरिवेटिव e raised to 3x into 3x का डेरिवेटिव 3 plus 1 का डेरिवेटिव 0 dx dt. So this becomes 3 e raised to 3x dx is dt, right? Now e raised to 3x dx, ये वाला टर्म तो यहां पर है, 3 नहीं है, तो 3 को हम वो साइड भेज देंगे, तो e raised to 3x dx is dt by 3, and therefore your function will become I equal to integration of, वो तो पूरा dt by 3 हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन नीचे t है क्योंकि पूरा टर्म t है, जूम किया था हमने। अब 1 अपॉन t का तो इंटीग्रेशन हमको मालूम है, तो ये अपॉन 3 को बाहर लिखा और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log of mod of t plus c, and now replace, resubstitute the value of t, तो वो हमने क्या लिखा था, e raised to 3x plus 1 plus c. This is your answer. Understood? Easy one. Okay. Now next question. Question number 6. I is equal to integration of x square plus 2 upon x square plus 1 into a raised to x plus tan inverse x. Think what will you substitute as t? और अगर कुछ दिखता नहीं है तो एकदम क्विक, अगर आप जस्ट क्वेश्चन को देखोगे तो देखकर ही क्या लगता है किस टर्म को टी पुट करना चाहिए? यस, सो डोंट यू थिंक ए क्या जो पावर है वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं टी पुट करूंगा तो आप सोचो ना कि उसका डेरिवेटिव 2x होगा, किधर 2x है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर किया तो ये वाला टर्म का क्या होगा, राइट?
So before we substitute, think about its derivative and the remaining terms. Why I thought that a का power को put करेंगे, because it looks more complex. And what about its derivative? तो x का derivative होता है 1. tan inverse x का derivative होता है 1/1 plus x square. So if you cross multiply ना, तो तुमको ऐसा ही कुछ तो मिलेगा x square plus 1 में, right? हाँ, तो रफ में अगर सपोज नहीं समझ रहा है तो रफ में करके चेक कर लेने का कि हमको ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं. So let x plus tan inverse x as t. So differentiating with respect to x, x का डेरिवेटिव 1, tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square dx equal to dt. If you cross multiply, it becomes 1 plus x square into 1 plus x square plus 1/1 plus x square dx is dt. So this becomes x square plus 2, denominator just arrange किया, x square plus 1 dx equal to dt. So don't you think we got the exact terms here, right? So it becomes so simple ना बच्चों. तो ये a raised to t हो जाएगा, that's all, और ये पूरा dt, right? So therefore I will be simply a raised to t and the rest term are dt. A raised to x का integration a raised to x upon log a raised to t upon log a plus c. Replace, resubstitute t, so that is x plus tan inverse x upon log of a plus c. This is your final answer. I hope everybody understood this. Sixth one now, easy one. Okay, moving ahead to the next question now. Seventh one, I is equal to integration of e raised to x into log of sine of e raised to x upon tan of e raised to x. Giving you 30 seconds to think what to substitute as t. सी ऐसे तो मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बट आपको क्लिक होना चाहिए इतने सारे सम होने के बाद कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है. सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या डेरिवेटिव होगा, बाकी के टर्म्स कैसे एडजस्ट होंगे. थिंक. टेन सेकेंड्स मोर. Okay, time up now. Now, if you look at this expression, very good Akshata and Priya, your answers is right. अगर मैं सोचूं कि सर साइन को पुट करूं, जैसा अनुराग बता रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस. तो साइन की जगह तो टी आ जाएगा, बट द क्वेश्चन इज सर साइन का डेरिवेटिव कॉस किधर आएगा, किधर लिखेंगे, राइट? कॉस तो है नहीं. आप बोलोगे सर टैन है ना, उसमें से साइन अपॉन कॉस करेंगे, कॉस ऊपर आएगा, करेक्ट.
तो चलो वो कॉस के जगह लिखोगे, बट फिर ई रेस टू एक्स की जगह क्या लिखोगे? तो सर आप बोलोगे साइन ई रेस टू एक्स के डेरिवेटिव में ई रेस टू एक्स आएगा, तो डेफिनेटली आप साइन ई रेस टू एक्स करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा मालूम है? लॉग टी आएगा और नीचे टी बचेगा। अब लॉग टी अपॉन टी, नीचे टी क्यों बचेगा? एक साइन का टर्म रहेगा ना, तो लॉग टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन ऐसा हमने देखा है क्या? लॉग टी अपॉन टी, ये तो यू बाई वी रूल हो गया। यू बाई वी रूल तो हमको मालूम ही नहीं है। बट जस्ट थिंक, अगर मैंने लॉग के साथ डेरिवेटिव लिखा तो क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करने आना चाहिए, डेरिवेटिव को विजुअलाइज करने आना चाहिए कि लॉग ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन समथिंग, तो वन अपॉन साइन हो गया पहला। तो फिर इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ऑफ समथिंग, एंड देन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, dx equal to 2. Have you all understood the derivative part? Now cos upon sine, cos upon sine, this becomes cot e raised to x into e raised to x, dx is dt. Since our question contains tan, cot को 1 upon में लेकर गए, तो वो e raised to x upon tan e raised to x हो जाएगा, dx is dt. So now don't you think e raised to x and tan e raised to x with dx can be directly replaced by dt? और ये पूरा वाला जो टर्म है वो तो हमने t एज्यूम किया है, तो ये सम सिंपली क्या हो जाएगा? therefore I is equal to सिंपल t बच जाएगा, दैट्स ऑल। देखो कैसा एक्सप्रेशन था और सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसा हो गया। yes, getting it students? And now integration of tan, we all know it's t raised to 1, so it is t raised to 2 upon 2 plus c. t को रिप्लेस कर दो, so that was log of sin e raised to x whole raised to 2 upon 2 plus c. This is your final answer. Yes, understood everybody? Okay, moving ahead to the next question, 8th one. I is equal to integration of e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1. नाउ स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको याद रखोगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x minus 1. Let me give you first 15 seconds to think. How will you solve this? What will you substitute? अब यहां पर अगर आप सोचोगे किसी भी टर्म को, सपोज e रेस टू 2x माइनस 1 को t पुट करोगे या e रेस टू 2x को t पुट करोगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेस टू 2x into 2. Can you find out e raised to 2x in the expression? I cannot take e raised to 2x with dx because now it is plus 1. Hello, are you understanding the problem? हाँ, इसका डेरिवेटिव e raised to 2x तो है, बट वो प्लस 1 है ना, मैं उसको dx के साथ अलग से लेके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, तो ये क्वेश्चन का टाइप को याद रखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हमको ऐसा ही करना है. What I'm going to do is I am dividing
numerator and denominator by e to the power x. Okay, so see what this expression will become. This is like e raised to 2x plus 1 upon e raised to x, e raised to 2x minus 1 upon e raised to x. अब मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रहा हूँ बच्चों, देखो आपको समझ रहा है. e raised to 2x अपॉन e raised to x, एक e raised to x कैंसिल, तो एक बचेगा. इधर बचेगा 1 अपॉन e raised to x. 1 upon e raised to x is e raised to minus x. Similarly, denominator e raised to 2x upon e raised to x is e raised to x. 1 upon e raised to x is e raised to minus x. Have you all understood? And if you have understood this, now if you think the denominator वाला term, या तो न्यूमरेटर किसी को भी कर सकते हो. Substitute it is up to you. आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है. डिनोमिनेटर वाले को सब्स्टिट्यूट किया e raised to x ऊपर, लेकिन न्यूमरेटर करोगे तो एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए डिनोमिनेटर ही करना पड़ेगा. थिंक अबाउट इट्स डेरिवेटिव, क्या होगा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x माइनस e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into derivative of minus x which is minus 1. Hello, dx equal to dt. माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, e raised to x प्लस e raised to minus x dx equal to dt. तो आप देख सकते हो ये पूरा एक्सप्रेशन हमको मिल गया with dx. So this will be simply I is equal to, वो पूरा dt हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन t dt. और अब इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है, that is log of mod of t plus c. And now we just have to replace p, that is e raised to x minus e raised to minus x plus c. तो ये आपका फाइनल आंसर. सबको समझ में आया. Okay, so important was the initial steps. Okay, sure. Moving ahead to the next question now, 9th one. I is equal to integration of sine raised to 4x cos raised to 3x dx. ये तो सिंपल है काफी. सोचो किसको टी पुट करोगे. Think students. Anurag saying sine raised to 4. What will be the derivative of sine raised to 4? Sine raised to 4 का डेरिवेटिव पहले होगा 4 sin raised to 3 into sin का डेरिवेटिव cos. अब कहां पर है एक्सप्रेशन में 4 sin raised to 3? और देखो एनीवेज दिस पावर विल नॉट अफेक्ट, पावर तो सॉल्व हो जाएगा, राइट?
तो लेकिन साइन रेस टू 4 को ले लोगे तो उसका डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आ जाएगा, करेक्ट? सो आई कैन नॉट टेक साइन रेस टू 4. सो व्हाट शुड आई टेक? अच्छा, अगर मैंने साइन को सब्स्टिट्यूट किया तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ तो कॉस क्यूब है, तो क्या करेंगे उसको? यस करेक्ट. एक कॉस को कॉस साइड में रखेंगे और जो कॉस स्क्वायर बचेगा उसको हम वापस से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट? हाँ, बट यही चीज मैं उल्टा नहीं कर सकता, कॉस को नहीं पुट कर सकता. अगर मैं कॉस को पुट करूं टी, तो ये तो टी क्यूब हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव में एक साइन एडजस्ट हो जाएगा, बट फिर साइन क्यूब को हम कॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना. कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर सकते, बट कॉस क्यूब को साइन क्यूब में नहीं कन्वर्ट कर सकते. सो बिफोर आई सब्स्टिट्यूट, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. लाइक साइन रेस टू 4 वी राइट एज इट इज, cos raised to 3 को I write cos square into cos. Okay. And then this again as it is. Cos square can be written as 1 minus sin square. तो अब ये क्लियर दिखता है कि अगर मैं sin x को t पुट करूंगा तो मेरा बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी. सो पुट sin x equal to t. So differentiating with respect to x, cos x dx is dt. So this expression cos x and dx will become dt, और बाकी सब जगह हम t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख. Therefore I is equal to, this is t raised to 4, 1 minus t raised to 2 and this is dt. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना रहेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते. t raised to 4 minus t raised to 6 dt. अब इसको इंटीग्रेट कर डालो. t raised to 4 integration is t raised to 5 by 5 minus t raised to 7 by 7 plus c. Replace t by sine. So sine raised to 5x upon 5. Sine raised to 7x 7x upon 7 plus c. This is your final answer. Yes, is it clear everybody? Please reply. Okay. Now next question. Yeah, next question now. Question number 10. I is equal to integration of 1 upon 4x plus 5 times x raised to minus 11 dx. क्या करेंगे? Think about this problem now. सिंपल दिख रहा है सर, x रेस टू माइनस 11 है, पहले उसको सॉल्व करते हैं. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस?
1/4x plus 5/x raised to 11 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x इंटू एक्स रेस टू 11, तो 4x रेस टू 12 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा अपॉन x रेस टू 11 ऊपर चला गया। एंड आई थिंक नाउ इट इज वेरी सिंपल, आप या तो x रेस टू 12 को टी पुट करो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव में x रेस टू 11 आ जाएगा, या तो इस पूरे को ही टी पुट करो ना, है कि नहीं। इतने को करोगे तो 4t प्लस 5, फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 का, उससे अच्छा पूरे एक्सप्रेशन को ही टी पुट कर दो। देखो 4x रेस टू 11 प्लस 5 इज टी। कभी भी जब ऐसा टर्म आता है ना और आजू बाजू केवल कांस्टेंट है, तो उस पूरे के साथ ही टी पुट कर देने का। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 कांस्टेंट एज इट इज, हाँ सॉरी x रेस टू 12 है। x रेस टू 12 का डेरिवेटिव 12 x रेस टू 11 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 dx इक्वल टू dt। सो 12 4 जा 48 x रेस टू 11 dx इज dt। 48 को उधर लेके आ जाओ, x रेस टू 11 dx is dt by 48. So now you can see that x raised to 11 dx can be replaced, ये पूरा t हो जाएगा, right? So therefore I will become 1/t हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dt by 48। अब जो अपॉन 48 है वो तो being constant can be taken out, 1/48 बाहर आ गया, एंड 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log of mod of t plus c, and now I can resubstitute back 4x raised to 12 plus क्या था plus 5। Have you all understood बच्चों? So this was question number 10. ये सारे सम्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको खुद को कॉन्फिडेंस गेन होगा और ये आप सम सॉल्व कर पाओगे। Moving ahead to the next question now. 11th, I equal to integration of x raised to 9 into sec square x raised to 10। क्या पुट करेंगे बच्चों, बताओ। ये तो बहुत इजी है। What will you substitute? Yes, but obvious x to the power 10, क्योंकि उसका डेरिवेटिव में x raised to 9 आएगा। सेक के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन होता है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है वहां पर, राइट। सो पुट x raised to 10 as t, differentiating with respect to x, so it will be 10 x raised to 9 dx equal to dt। 10 को उधर भेज देते हैं, x raised to 9 dx is dt upon 10, correct? So x raised to 9 and this dx will be replaced by dt by 10। यहाँ पर बच जाएगा sec square t। So therefore I is equal to, ये हो गया
सेक स्क्वायर टी और ये हो गया dt/10। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट मालूम है, tan x होता है ना, एंटी डेरिवेटिव वाला। तो देखो 1/10 को बाहर लिखा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t प्लस सी। नाउ जस्ट रिप्लेस t। तो t क्या एज्यूम किया था, x⁻10। So this becomes your answer. Understood? Easy one. Okay. Now moving ahead to the next question, that is question number 12. I is equal to integration of e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 raised to -1। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी जैसे ये 3 है ना, ये 3 लॉग का प्रॉपर्टी से वो x के पावर में चला जाएगा, राइट। ये हो जाएगा e रेज टू लॉग ऑफ x क्यूब हो जाएगा, और ये रेज टू -1 की वजह से ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो रेज टू 1 हो जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? Now we know that log to the base is always e, and we know a property that अगर a है और उसके पावर में log b है बट उसका भी बेस a है, तो ये सब टर्म कैंसिल होके बस b बचता है। तो अगर मैं वो अप्लाई किया तो ये e कैंसिल हो जाएगा, तो बस x⁻³ बचेगा और नीचे x⁻⁴ प्लस 1 बचेगा। x⁻⁴ के डेरिवेटिव में x⁻³ आएगा तो एडजस्टेड। अब साथ में +1 है तो उसके साथ लेकर t एज्यूम कर लो, राइट। सो आई विल पुट हियर x⁻⁴ plus 1 is t. So differentiating with respect to x, 4x⁻³ dx is dt। 4 को ट्रांसफर किया, so x⁻³ and dx becomes dt/4। ओके, एंड ये तो पूरा t है, तो therefore I will be equal to what? 1/t into dt/4। अभी 1/4 being constant can be taken out, and 1/t का इंटीग्रेशन log of t, so 1/4 log of mod of t plus c। Replace or resubstitute the value of t here। so क्या पुट किया था t हमने, x⁻⁴ plus 1। so it's done। have you all understood? So that was the 12th question. Next one. I is equal to integration of root of tan x upon sin x into cos x dx। Now all of you think what to substitute, how to solve this problem. Giving you 30 seconds.
Yes, anyone able to think about this problem? तो इस प्रॉब्लम में भी थोड़ा अलग चीजें होंगी, इसलिए इसको स्टार करके रख रहा हूं। जैसे वो ई रेस टू एक्स था, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। हम क्या करेंगे मालूम है, रूट टैन है ना, कैन वी ब्रिंग टैन हियर? यस। अगर मैंने इसको डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर किया तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस कैन बी रिटन एज टैन। टैन रूट टैन, तो हम उसको शायद कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज डिवाइडिंग numerator and denominator by cos square x. Therefore, I will be equal to what? Root tan x divided by cos square x whole upon sin x cos x divided by cos square x. अब जो न्यूमरेटर का cos square x है वो तो किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा और sec square x बन जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा रूट tan x, और जो अपॉन कॉस स्क्वायर था उसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचा, उसको मैंने tan एक्स लिख दिया। ठीक है, अभी हमको मालूम है ये रूट tan एक्स है और ये tan एक्स है, तो tan एक्स के अंदर दो रूट है। अरे हाँ या ना, हम करते थे ना ऐसा, रूट ए अपॉन ए है, तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब रूट ए इंटू रूट ए है ना। एक रूट ए कैंसिल हो जाता है तो वन अपॉन रूट ए बचता है। तो वैसे ही tan x के अंदर दो रूट tan x है, एक रूट tan x कैंसिल, तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये बस बचेगा ऊपर sec स्क्वायर एक्स और नीचे रूट ऑफ tan x। एंड नाउ आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि अगर मैंने tan x को t पुट किया तो उसका जो डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स वो डायरेक्ट एडजस्टेड है। So differentiating with respect to x, sec square x dx is dt. तो ये वाला sec square x with dx dt हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा I is equal to, वो तो dt हो गया, वन अपॉन tan x की जगह t, तो ये हो गया रूट टी। रूट टी मतलब टी रेज टू हाफ, टी रेज टू हाफ ऊपर जाएगा तो टी रेज टू माइनस हाफ, सो इट इज टी रेज टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, which is t raised to minus half plus 1, that is 1 by 2 upon 1 by 2 plus c. 2 ऊपर गया, 1 by 2 तो 2 हो जाएगा, t raised to half root t हो गया। and now you will substitute back t का जगह t का value, that was tan x. so this is your answer. सबको समझा स्टार्ट का स्टेप्स कैसे हमने किया? उसके बाद तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। so initial steps are very important, that adjustments divide by cos square and then adjusting the terms is very important. Okay, now moving ahead to the next question, 14th one. What is that? I is equal to integration of x minus 1 the whole square upon x square plus 1 the whole square dx. करेक्ट? कैसे करेंगे इसको? तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े
सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होंगे, एक्सप्रेशंस फंक्शंस थोड़े आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कैसे करना है। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इधर एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। आई मे थिंक कि सर मैं इसका अगर होल स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे अंदर का टर्म मिल सकता है, राइट? कैसे? देखो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस स्क्वायर। देन आई कैन फर्दर राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस वन को साथ में लिया, माइनस टू एक्स को अलग लिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू टू। आई कैन सेपरेट देम, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसको अलग लिखा। और यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा, करेक्ट। अब दो इंटीग्रल हो गए। अब अगर आप पहला इंटीग्रल देखोगे ना तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स एक्स का है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज tan इनवर्स एक्स, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे? तो देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आई वन ले लेता हूँ और उसको अलग से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज योर इक्वेशन वन। अब मैं क्या करूंगा, आई वन कंसिडर करूंगा, कंसीडर आई वन विच इज नथिंग बट टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन the whole square. What will I substitute here? I'll substitute, put x square plus 1 को t, तो x square का डेरिवेटिव 2x dx is dt. I no need to take 2 this side because already I have 2x and dx. I will replace it by dt और नीचे वाला जो x square plus 1 है उसको मैं t लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा therefore I1 is equal to, ये dt हो गया और ये 1 अपॉन t रेज टू 2, that is t raised to minus 2, and t raised to minus 2 का इंटीग्रेशन t raised to minus 1 upon minus 1 which is minus 1 upon t. t का पावर नीचे आ गया, माइनस वाला ऊपर लिख दिया मैंने। नाउ रिप्लेस t, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये मेरा I1 हो गया। therefore substituting 2 in 1, right, substituting 2 in 1, so therefore I is equal to, पहला तो tan इनवर्स x था और दूसरा वाला का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर। समझा सबको हमने कैसे सम को सॉल्व किया? अच्छा, क्वेश्चन में ऊपर माइनस I1 था ना, तो माइनस I1 लिखेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऐसा होगा ना, माइनस I1, I1 इज माइनस, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट सम, दैट इज अ 15 सम।
I is equal to integration of 2 sin x cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x। बच्चों याद रखो कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये ऐसे टर्म है जिसका डेरिवेटिव हमेशा 2 sin x cos x ही होगा। यस और नो? क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर पहले होगा cos रेस टू 2, तो 2 cos, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस माइनस को जाने दो, बट 2 sin cos आएगा। साइन स्क्वायर में भी 2 sin cos आएगा, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को टी पुट कर सकते हैं ना, बाद में 2 sin x cos x एडजस्ट हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर पुट 3 cos square x plus 4 sin square x as t, differentiating with respect to x, 3 constant, पहले cos रेस टू 2 का डेरिवेटिव 2 cos x और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस 4 कांस्टेंट, साइन रेस टू 2 का डेरिवेटिव पहले 2 sin x, उसके बाद साइन का डेरिवेटिव cos x। ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा dx इक्वल टू dt। तो आप देख सकते हो 2 sin x cos x सब दोनों में कॉमन है, क्योंकि मुझे 2 sin x cos x चाहिए, मैं 2 sin x cos x को कॉमन ले लेता हूँ। So I have taken 2 sin x cos x कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर? सो 3 इंटू माइनस, तो -3 बचेगा, इधर 4 बचेगा, dx इक्वल टू dt। अभी 4 - 3 तो 1 ही होने वाला है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? सो इसका मतलब ये सिंपली 2 sin x cos x हो गया, dx इक्वल टू dt। डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3 2 जा 6, तो ये -6 हो गया और ये 4 2 जा 8, तो ये +8 हो गया। 8 - 6 इज 2 टाइम्स, राइट? तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन dx के साथ मिलकर dt हो गया और नीचे वाला t हो गया। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन में, 1/t dt। So the answer is log of mod of t। t को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया है, 3 cos square x plus 4 sin square x। थ्री cos square x plus 4 sin square x। Hey, are you all understanding all the questions? कैसे कर रहे हैं हम लोग? हाँ, जहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है वहां पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्लिक हो रहा है, सो वी आर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग देयर, राइट? So we have done till 15th question. Now I'm not doing any other question for today. You all have to practice these 15 questions. ठीक है, आज आपने मेरे साथ एक बार किया होगा, नहीं किया तो वो एक बार करना है, उसके बाद वापस से एक बार सॉल्व करना है। ठीक है एवरीबॉडी? These 15 problems to be solved 2 times. Clear? हाँ, ये अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो फिर आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। और किसी को कोई डाउट? Anything you want to ask? Clear? Okay. ठीक है, then that's all for today. Thank you very much. I'll send you the PDF also. So if you have missed something, you can write down. Chalo, thank you very much. Take care. Bye bye.